ख़ास तौर पे मैंने ये कहा था कि हमारे रोइंग के जो तो भी जल सकता है, और आपने उस समय ये स्टेटमेंट दिया था कि रोइंग को फायर स्टेशन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे। तो उस समय दिल का बहुत सुकून मिला था, लेकिन अभी 1 साल बीत चुके हैं कि फिर वो सुनने के लिए चाहते कि ये 35 प्रपोजल्स में रोइंग तो प्रायोरिटी नंबर 1 है ना, नहीं है सर अभी? आपका रोइंग का अभी तक नंबर 2 में आया नहीं, क्योंकि उसके बाद किसी को दिया भी नहीं अभी तक, तो इसलिए अभी 1 में होता होगा। तो ये सारा चीज़ जो है, क्योंकि अभी नंबर 2 नंबर 3 में लाना पड़ेगा। आपका 1 एक तो किसी का भी नहीं, वो वी आर सेंडिंग अप द प्रपोजल टुगेदर, क्लैपिंग योर रोइंग ऑल्सो। थैंक यू सर। Start question 42. 1. Sri Wangling Nuang. Speaker, sir, my start question number 42 pertains to the extraction and exploration of mineral resources, particularly oil and gas, the state of Arunachal. And in this particular mention, it is regarding to the Deomali block licenses which was granted by the Ministry of Petroleum a few years back, and I think it's expired in the month of July. Whether further extension will be there, I am not sure. But my intention is that the future of the state depends on the mineral resources and its extraction and exploration, particularly in the sphere of employment to the youth and also earning revenue for the state exchequer. In spite of my repeated questions to the state government to pursue this matter with the relevant authorities, herein concerned is the Indian Oil and also the Government of India. Every time is an oft-repeated answer which states that there is no clearance from the Environment and Forest and also National Board of Wildlife. In my discussion with the Department of Forests and also the Geology and Mining, answer has been given that because of the wildlife sanctuary nearby in the vicinity of the particular area in Deomali, now Assam has declared those areas adjacent to the Namsang and Bodria forests as Dihing Patkai National Park. And it states that beyond certain radius, no mining activities will be allowed. Now herein, we have to take the word capital mining, capital M. Here it is not mining, here it is exploration of oil. Wherein I would also like to state that even the Supreme Court has cleared the the extraction and exploration of mineral resources, not mining. So mineral resources like oil and gas is different from mining. And here, in a move that may have wider implications, this is October 12, 2021, the National Board of Wildlife, an apex body that takes calls on conservation issues, has decided not to treat extraction of natural oil or gas as a mining activity under the existing law on mines and minerals regulations in green areas. Taking a call on the projects near Trishna Wildlife Sanctuary in Tripura, the Standing Committee of Board
in its last meeting recommended the proposals for diversion of forest land by going ahead with the opinion of State Advocate General and Solicitor General of India. I would also like to state that since it is a matter concerning our state, and as per the state government, forest department of our state, their concern is that we have put forward the case to the Assam Wildlife. Now, what has Assam Wildlife got to do with the state of Arunachal Pradesh? We have our own government, independent states are there. So I think that our state government should take it up on a priority basis with the government of India, Petroleum Ministry, to expedite the exploration. Seismic survey has been undertaken, exploration locations have been determined, and it's been, I think, almost 3 or 4 years when exploration has not yet taken place. Now, what I feel is that the state government must give priority to this exploration of mineral resources, which is also our future. And moreover, the Supreme Court has not banned any. Some say it's 10 kilometers radius. How can it be 10 kilometers? Whereas the Supreme Court has clearly mentioned that it is within 1 kilometer radius. And the location where this oil has been purportedly found, especially in Namsang and Bodria area, is beyond 1 kilometer. Even if it comes under the purview of the national park or wildlife. So I think the state government should not sleep over it again. And it's high time that we awake and also visualize the importance of the mineral resources of our state and do our best to explore whatever resources we have. Because mineral is the future of our state. Thank you, sir. You would like to reply, or the Minister of Forest? So, some part of the question relates to forest department. Actually, it is a fact that in 1998, Ministry of Petroleum and Natural Gas granted permission for petroleum exploration license in Devmali area. And then thereafter, in 1999, state government had granted working permission for specific survey to Oil India Limited. And then thereafter, again, it was bifurcated into two by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. That Devmali area block was bifurcated into two. And one block was given to the JV block and another portion retained by the Oil India. And since then, since from the year 2005, all the information has been tabled actually as sought by the honorable member. So just I will be precise. So from 2005 onwards, natural gas and petroleum, Ministry of Petroleum have given exploration license to Oil India Limited in that allocated area, and it went on extension till last July. So it has already expired, July of this year. And till today, Department of Geology and Mining is yet to receive any proposal from the Oil India Limited for further extension. Now, as regards to clearance from the Ministry of Forest and Environment, Government of India, our honorable member has rightly stated, within 10 kilometer radius of any notified reserve forest, particularly wildlife sanctuary, national park. So the location that were identified by Oil India in Devmali area falls within that 10 kilometer radius of Dehing Patkai National Park. So I don't know, I cannot say how long it will take to get clearance, because it is mandatory that standing committee of National Wildlife Board has to give clearance. So this is the present status. But the honorable member is saying 1 kilometer. You said 1 kilometer radius. 1 kilometer radius. How much? 1 kilometer. And there's a contradictory
statement from both of you. You are saying 10 kilometers, Actually, he's sir, saying 1 it kilometer. it is 10 kilometer radius, but then in some cases, that has to be notified. In some areas, eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone need to be notified by the ministry. Yes. Then it may be 1 kilometer, maybe half kilometer, but Yes. then as of now it is 10 kilometer. I think Honorable Minister Forest will be the right person to answer this question. You have one question coming up. You can club it up and give the answer. So, your next question, start question 482. No, this is the same question. I think There's The a same repeat of question, then I'll ask Minister for us to reply on that. okay. माननीय अध्यक्ष जी, स्टार क्वेश्चन नंबर 42। ऐसे तो आंसर पूरा यहाँ दिया गया है कि पहले बार ऑनरेबल मेंबर ने, सीनियर मेंबर ने दो ट्विन क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए आपको वेलकम करते हैं कि ये जो 7.370 हेक्टर जो PEL पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए ऑयल इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट को 1998 से उसका जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस के लिए वो ऑफिशियली कारोबार शुरू हुआ, जिसमें से 7.370 हेक्टर वो फॉरेस्ट लैंड में पड़ता है। वो ड्रिलिंग के लिए है। ड्रिलिंग के लिए आपका फॉरेस्ट लैंड DML2 एंड DML3/1, जिसमें बरदोरिया ब्लेस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर और उसके बगल में डिहाइन पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एज पर द गवर्नमेंट की नॉर्म्स में, भारत सरकार की जो नॉर्म्स है और अपना जो FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके अनुसार पर उसको 10 किलोमीटर के दायरे में जब तक इको सेंसिटिव का डिक्लेयर नहीं होगा उसमें वो लाइसेंस दिया नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारा जो बरदोरिया एंड देवमाली जो नामसंग, ये हमारा 10 किलोमीटर का फेरी में है। तो वो डिहाइन पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आसाम में पड़ते हैं। अपना जो हमको ड्रिलिंग करना है, जो ऑयल इंडिया ने जो ड्रिलिंग करना है, वो हमारा बरदोया अरुणाचल में पड़ते हैं। वो बॉर्डर के सामने में है। इसके लिए काफ़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी क्रॉसफंडिंग किया कि इसमें 2016 को यूजर एजेंसी ने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है कि ये आपका DFO, वहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड यूजर एजेंसी मिल के वो सर्वे करें। तो वो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद ऑन डेटेड 3/4/2019 को यूजर एजेंसी के साथ और अपना डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों ने जाकर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में उसको रीजनल ऑफिस शिलोंग में उसको सबमिट किया। शिलोंग में सबमिट करने के बाद 6/5/2019 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जरिए तो यूजर एजेंसी को बोला कि वहाँ से RO शिलोंग से कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया है एज पर द FCA का नॉर्म्स पर, उसी नॉर्म्स पे आपका डॉक्यूमेंट फुलफिल सबमिट नहीं हुआ है। तो क्वारी करने के बाद अगेन डिटेल जो है फिर 28/2017 को फिर यूजर एजेंसी ने फिर सबमिट किया है। ऐसे करने के बाद में एंड सेम प्रोसेस हैज सबमिटेड टू RO शिलोंग ऑन 23/1/2020 को। उसके बाद एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से 2006 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नोटिफाइड का हिसाब से इको सेंसिटिव, मैंने तो पहले बताया कि इको सेंसिटिव जो है अभी तक वो 10 किलोमीटर के दायरे में डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ताकि वो इको सेंसिटिव जो पटकाई है
पटकाई डिहेन पटकाई का अंदर तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक उसका सीमा रहेगा और 10 किलोमीटर दायरे में वो अरुणाचल उसको एक्टिविटी कर सकता है। वो अभी तक वो पूरा प्रपोजल जो है आरओ ऑफिस में एम्पावर कमेटी के साथ मीटिंग करने के बाद में फिर असम गवर्नमेंट से भी लिखा है कि असम गवर्नमेंट क्लियर करे कि आपका जो दिहेन पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कितने फ्री में है, ओके, उसका बाउंड्री कितने में है, उसका इको सेंसिटिव जल्दी डिक्लेयर कीजिए। वो समस्या जो है ऑलरेडी मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूरे स्टेट गवर्नमेंट से वो सबमिट किया गया है। जिस समय वहाँ से इको सेंसिटिव का डिक्लेयर होगा उस समय में उसका जो एक्टिविटी जो शुरू होगा। ये इसलिए आपका ऑनरेबल मेंबर्स और अब ऑनरेबल मेंबर्स ने जो क्वेश्चन किया उसका नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू। Supplementary speaker, sir. In regard to the declaration of the Dihing Patkai National Park, that also is bedded in controversy because in the last assembly session, I asked a question in regard to this declaration of the national park by the Assam government. Very arbitrarily, they have declared overnight when the entire nation and also the state of Arunachal including, was suffering from the very effects of COVID. One fine night in the year 2020, some people came and removed the nameplates of the Dihing Patkai wildlife and converted into a Dihing Patkai National Park. How far our state government has gone in trying to contradict the stand of the Assam government, I do not know. But here I would like to say, in regard to this declaration of buffer zone and eco-sensitive zone areas, I have seen a proposal from the Assam side also that they intend to declare Deomali town area as a buffer zone for the national park, Dihing Patkai, so to say. Now, if we allow the Assam government to declare Deomali town area as a buffer zone, all the activities that are prevalent at the moment in Deomali town, the ADC headquarters, all the schools, all the institutions, everything in Arunachal Pradesh will come to a standstill. Only wildlife will be allowed to roam free. No human habitats. Will we allow it? Now, herein also, I would also like to contradict the stand taken by the Honorable Minister. He states that 10 kilometers. I beg to differ, it's not 10 kilometers. It's 1 kilometer radius, and wherein it states mining activities within 1 kilometer. Not mineral oil exploration and gas exploration. Now, that also will come in according to the purview and the stand taken by the state government. We have our own state government. We have got our own state forest department. We have got our own PCCF. How can we come under the purview of the Assam government? Will we come under the presence and the suggestions of the Assam government wildlife? If required, let our government take the stand with the Ministry of Petroleum Industries. Even in Assam also, Duliajan is hardly 1 kilometer radius from the Dihing Patkai. And also then there is last year there was a fire, huge fire, 6 months in Bhabjan. There was 500 meters from the wildlife sanctuary nearby. So these are all under the presence of the wildlife or the national park within Assam. Now, when Arunachal intends to explore our mineral resources and our other resources, why has other state have to object? So I think we should go ahead. We can discuss with with the concerned ministry, the government of India. And I think government of India is also, it encourages exploration. In Nagaland, the Ministry of Petroleum and Industry, Petroleum Ministry encourages the Nagaland government to explore
the oil resources. On the Herein member, we said- on the member, your supplementary is No, my contradictory. supplementary It's a 1 is kilometer. that. You said it's 1 kilometer, but they are claiming to be 10 kilometer. No, it is not So 10 वो kilometers, आप and clear it, कर it दो. does not. It is not the mining activities. Of course, there are restrictions within 1 kilometer, but as far as oil exploration is concerned, as far as Supreme Court instructions, I mean the ruling of the Supreme Court, recent ruling. Thank you, sir. मंत्री जी आप जवाब दे दो. वो दो चीज़ है आपका 1 किलोमीटर वाला एक्सप्लोरेशन के लिए एप्लीकेबल है. इसके बाद वो दूसरा है कि असम, व्हाई शुड असम हैव ओवर हेड इन Honorable Adek ji, अफेयर. ये जो कहीं भी भारत में पूरे भारत के जो अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से कहीं भी अगर सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से आप 10 किलोमीटर के दायरे में आप कुछ कर नहीं सकता है. विदाउट इको सेंसिटिव जोन उसको डिक्लेयर नहीं करे, जब तक गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं करेगा, उसको नोटिफाई नहीं करेगा, इतना किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन के अंदर उतना बाउंड्री तक, वो बाउंड्री सीमा तक उसका इको सेंसिटिव जोन इतना सीमा तक रहेगा. उससे आगे जो इको सेंसिटिव जोन है, इसको एक्टिविटी के लिए जब तक नोटिफाई नहीं करेगा भारत सरकार जो एक्ट का हिसाब से, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता. इसलिए ये हमारा सरकार की बात नहीं है, असम सरकार की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. और उसके लिए वो डिक्लेरेशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिफाई करना होगा. जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा सीमा का नोटिफाई नहीं करेगा, इको सेंसिटिव जोन का नोटिफाई नहीं करेगा, वो वहाँ में एक्टिविटी नहीं कर सकता है. इसलिए इसको नोटिफाई करने के लिए रीजनल ऑफिस शिलोंग में हम लोगों ने पूरा स्टेट गवर्नमेंट से उसको यूजर एजेंसी के साथ वो नोटिफाइड के लिए हम सबमिट किया गया है. वहाँ अभी तक वो केस जो अभी तक वहाँ में पेंडिंग है. थैंक यू. सप्लीमेंट्री सर, जस्ट वन क्विक वन. सर ये भी जानकारी थोड़ा हासिल करना था कि इको सेंसिटिव जोन कहाँ, मैंने सुना था कि इट कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड इन 0 किलोमीटर. इज इट प्लॉजिबल सर, 0 किलोमीटर में इको सेंसिटिव जोन? ठीक है, मैं वही मैं आपको सदन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. वो एक्ट का हिसाब से 1891 रेगुलेशन एक्ट, उस एक्ट का हिसाब से आप 10 किलोमीटर तक, वो बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट जब तक उसको नोटिफाई नहीं करेगा, जब आपका बाउंड्री है, आपका बाउंड्री से अगर आपको सीमा से ही आपको नोटिफाई करेगा, वो 10 किलोमीटर जो है उसमें एक्टिविटी कर सकता है. वो नोटिफाई जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से किया नहीं है, उसके लिए सरकार ने पूरा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन को वहाँ में हम लोग ने आरओ ऑफिस में सबमिट किया गया है, और आरओ ने भी उसको मिनिस्ट्री में वो सबमिट किया गया है. थैंक यू. श्री निनोंगरिंग 12 आपके लिए है क्वेश्चन. Honorable Speaker, sir, through you I would like to ask the Honorable Minister Environment Forest in regarding to the Gali Reserve Forest and the Gutin Reserve, which falls under my constituency, sir. So during my tenure as a circle officer, there had been an agreement that the Gutin Reserve would be given to the Forest Department in lieu to the Gali Reserve. So as per the Conservation Act, I'm sure there were certain strictures, and of course I stand to be corrected, because I thank Honorable Minister, because in 2014 I was a Member of Parliament and we had an amendment there on this Forest Dwellers Act. So, but you have corrected me and I stand corrected for that, sir. But the main reason why I have said is that these people living in Depu, Detak, Depumoli, all these areas which are just on the border of Assam,
we just had a recent visit, sir, by my counterpart, Mr. Bhuvan Peku, the MLA of Jonai and Silpatar. And there I had told him also. So all the settlements along that area have already been are settled by the people from Assam. They've encroached a lot, but still we have accepted, okay, till that forest road, which runs there's a parallel road from Ruksin Chegate right up to the River, which connects Name also. So now, the complaints of the people are that, sir, we have lived for so many years. We have lived here for decades. And now, when the issue of compensation comes, let it be on let it be on railway, let it be on power supply, power grid. This time also in the power grid, a compensation was given to the forest department amounting to about 17 crores. Now people there, they have their own, tokopats, they have their bamboos, they have their orchards, they have their rubber gardens. So they have been denied that. Now I would request or ask the Honorable Minister that can't we have similar as that of how we de-reserve the Deopani Reserve in Rohing? Why can't we accept this and give compensations to the people who are suffering, who have really the rightful owners and who have been here since decades, right from times immemorial. So that time people did not know that this is a reserve or our USF. But as far as I know, the Gutin Reserve was handed over in lieu of the Gali Reserve. But Gali Reserve, the Assam have already allotted their lands to the people. They have already, if you see the map, you will see the whole half of Assam, not half, more of Assam and little bit of Arunachal, the Gali Reserve stands, even to this day. And we also know that yes, this is still not denotified. So, Honorable Minister, will you give some relief to the people, at least in the case of the compensation, because which you have taken 17 crores, which have been given by the power grid to you, can't we hand over that to the people who are the poor people living on those border areas? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, ये स्टार क्वेश्चन नंबर 12 ऑनरेबल सीनियर मेंबर नैनो एरिन जी ने जो राइज किया और सप्लीमेंट्री जो आपने जो सप्लीमेंट्री लोगों को वहाँ का जो हैबिटेंट लोगों को कि उनका कंपेंसेशन हो, ये कैसा कैसा हुआ और सरकार की तरफ से क्या क्रॉस फंडिंग हुआ और उसमें कैसा मीटिंग हुआ लोगों के साथ, उसको आपको मैं ब्रीफ थोड़ा सा मैं सदन को बताना चाहता हूँ ऑनरेबल स्पीकर आपके माध्यम से। ये 23 जनवरी 1937 को गाली रिजर्व फॉरेस्ट और नोटिफाइड किया गया था उस समय 1891 फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत, जिसमें से उन दिनों में 1937 को हमारा उस समय में नेफा में हमारा असम में जितने नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट है हम सब एक ही थे। उस समय हमारा जो स्टेट का बाइफरकेट नहीं हुआ। उस समय आपका जो बाउंड्री जब इंटर स्टेट जब बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट 4096 एकड़ और 1638 हेक्टेयर ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट केम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेफा प्रेजेंटली स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो अपना प्रदेश स्टेट में वो आ गया। देन जो 1968 इंटर एरिया ऑफ द आरएफ फीलिंग अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसी में क्या हुआ कि असम का धीरे धीरे इसमें एंक्रोचमेंट शुरू हुआ असम में। और ये 1971 द मेंबर ऑफ एजेंसी काउंसिल पासीघाट नेफा में प्रपोजल सबमिट किया कि गाली रिजर्व को
डी रिजर्व किया जाए, ताकि हम इतने सदियों से हम लोग बैठ के आया, हमारा जो 3 डिकेट्स 2 डिकेट्स यहाँ हम बैठ के आया कि इसको डी रिजर्व किया जाए। तो उस समय में 12 तारीख अगस्त को 1980 को वो मीटिंग में डिस्कस हुआ कि गाली रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व किया जाए, ताकि इसके बदले हम आपको जगह देने के लिए तैयार है। तब उन्होंने, पब्लिक ने, वहां का जनता ने और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये निर्णय हुआ कि ठीक है, आप उसको हम डी रिजर्व कर देंगे 1980 को, तो आप हमको जगह देना होगा। तो जगह का नाम उसके बदले डी रिजर्व करवाने के लिए उसके जगह के बदले में भूटान को दिया। भूटान को देने के बाद तब उसके बाद में 13 फरवरी 1985 को दे प्रपोजल जो है गाली को उसको डी रिजर्व के लिए भारत सरकार में वो प्रपोजल भेजा यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट ने 1985 को। देन 13/11/2000 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डी रिजर्व का जो जितने भी जो देश का प्रपोजल है उसको बैन कर दिया कि 1996 जब टिम्बर ब्लैंकेट बैन हुआ उसको लेकर 2000 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी कोई डी रिजर्व वाला काम नहीं होगा। उसके बाद 23/5/2003 को दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उसको अप्रूव करने का डी रिजर्व को मना कर दिया। देन 25/4 जिसमें से जो ऑर्डर आया कि उसके लिए 25 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑल्सो इंटीमेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ऑर्डर नंबर 13/11/2000। उसके बाद 28/2/2005 को स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पासीघाट जो एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसके लिए आइए एपेक्स कोर्ट में केस दाखिल करना होगा, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करना होगा। उसके बाद फिर 2006 को पार्लियामेंट में जो पास हुआ कि पार्लियामेंट में ये पास हुआ कि जो 3 डिकेड से कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट में हो, अगर हम लोग वहाँ का लोकल ट्रेवल बसता है कि उसके लिए वहाँ में परमानेंट सेटलमेंट बैठने का दिया जा सकता है। ये जो पार्लियामेंट में पास हुआ 2006 को दी शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कॉमनली नोन एज द फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको एनेक्ट किया है। तो अभी समस्या यहाँ में है कि उसके लिए हम अपना सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने एजी से भी कंसल्ट किया। एजी ने भी बोला कि हाँ, ये 2006 में जो पार्लियामेंट में जो पास हो जो एनेक्ट हुआ है ट्रेवल लोग को रहने के लिए जो भी 3 डिकेट से उसको वहाँ में बैठने का प्रावधान है, वहाँ बैठ सकता है। तो उसके बाद उसमें बैठने के लिए पूरा गरम सभा बैठकर डिप्टी कमिश्नर के साथ, डीसी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम 3 डिकेट से यहाँ में बैठ रहा है। और इस जंगल, इस पहाड़ में उसमें एज पर द जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ जो एनेक्ट किया उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है कि वो ट्रेवल का लोग वहीं बैठेगा और 3 डिकेट अगर 1 डिकेट में नहीं हो पाएगा, जो 3 डिकेट से है वो वहाँ में बैठने के लिए भारत सरकार का कानून में बनता है। तो इसलिए ऑनरेबल मेंबर्स आपसे मैं अभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एज पर जो ट्रेवल एक्ट का हिसाब से अभी डिप्टी कमिश्नर को आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गरम सभा बिताकर इसको एज पर ट्रेवल एक्ट का हिसाब से आप उसको प्रपोजल डालिए। इसमें बिल्कुल भारत सरकार के अनुसार पर उसको विकेट करने का नहीं है, 3 डिकेट से है। तो ये इसलिए आपके सदन में आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये सदन में बताना चाहता हूँ और आप जाकर डीसी को आप मीटिंग करवाइए। थैंक यू। Start question I have 16. one more supplementary. Sri Lombotai. One more supplementary, it's very important. You have too many No, it's very supplementaries important regarding because I think the Honorable Minister, But be short, don't make a statement. to Just ask Honorable the Minister to question. say it very mildly is misleading the House. Here the Supreme Court order of 2006
relates to prohibiting mining activities within a distance of 1 kilometer from the boundaries of national park and sanctuaries. The exemption has now been granted to both exploration and exploitation and development of oil and gas. This was in direction to the Supreme Court passed in the bench of Justice N. Nageshwar Rao, B.R. Gavai, and Aniruddha Bose in the year 2021. Now, wherein the distance of 10 kilometers come in? So herein it is 1 kilometer and 10 kilometers. Where does the 10 kilometer radius come in? And moreover, it will be also in according to the state government as to what should be declared as a ESZ or not, and how much of the area within the national parks will be under the purview of the national park. I mean, the eastern ESZ in purview of the what do you call national park, the ESZ. So I mean this 10 kilometers. I do not know from where he's got the statement of 10 kilometers. Honorable Minister. ऑनरेबल मेंबर ने जो सप्लीमेंट्री पूछ रहा है कि उसको अगर आप 10 किलोमीटर का दायरे में, हमने तो आपको बताया कि 10 किलोमीटर का दायरे तक इको सेंसिटिव में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नेम में है। अगर आपको कंफ्यूज है तो मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि ऑनरेबल मेंबर आप आइए ऑफिस में, आपको हम अच्छा से आपको हम कानून बुक आपका भी लेकर आइए, आप जहाँ तक आपको जानकारी है मेरा भी आपको रखेंगे, तो हम दोनों वो समस्या को वही बातें करते हैं। थैंक यू। और दूसरा सर, इट इज नॉट 3 डेकेड्स, 3 जनरेशन से, 3 जनरेशन से जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं गाली रिजर्व में, वो ट्रेवल एक्ट का हिसाब से जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ वो वहाँ में बैठ सकता है डीसी का साथ मीटिंग करके, गर्म सभा करके। नॉट 7 डेकेड्स, नॉट 3 डेकेड्स, 3 जनरेशन। Thank you, sir. Sir, one more supplement. Start question. Sir, supplementary. सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, वो पूरा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, सीधा। Honorable Speaker, sir, ये पावर ग्रिड को लेकर के मेरा भी एक सबमिशन है, ये आगोस हाउस का सामने मैं लाना चाहता हूँ कि ये हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व को लेकर के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने जो ट्रांसमिशन टावर आपका 132 केवी लाइन एनएसपीसी से लेकर के पासीघाट तक बना रहे हैं, उसको लेकर के मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ में आरएफ नहीं है वहाँ में गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया गया है, जहाँ में आरएफ है वहाँ में कॉम्पेंसेशन नहीं देने की वजह से लोगों ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर का जो टावर इरेक्शन था उसको बंद करके रखा है। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कि एनएसपीसी आपका 2022 का अंदर में कमीशन करेगा 500 मेगावाट, और ये ट्रांसमिशन टावर अगर कंप्लीट नहीं होता है तो अरुणाचल को एनएसपीसी का लाइट नहीं मिलेगा। और लिकावली में फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, थ्रू यू आई वांट टू ब्रिंग बिफोर दिस इंफॉर्मेशन टू बिफोर दिस हाउस कि लिकावली में 132 बाय 32 केवी का पावर स्टेशन बना के तैयार है, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं बनाने का कारण से वो पावर को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मेरा ये सबमिशन ये है कि स्पीकर सर, ये फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनरिजर्व में कोई डिफरेंस नहीं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, और वो आदमी लोग सही उसे बेता है, और फॉरेस्ट रिजर्वेशन कब किया कब नहीं किया उसको भी पता नहीं, लेकिन फॉरेस्ट लैंड का स्टेटस सेम होने का वजह से इन लोगों का एक आक्रोश है कि हमारा पड़ोस को कॉम्पेंसेशन मिला, हमको नहीं मिला, हम बनाने नहीं। सिंपल सा ऐसा ये लोग का कहना है। तो दिस इज माय सबमिशन कि गवर्नमेंट ये गौर करे कि हमारा जहाँ में आरएफ बोलने से भी आरएफ का कोई नामो निशान नहीं, आरएफ का कोई स्टेटस नहीं,
फॉरेस्ट का वहाँ में कुछ आदमी जाना आना भी नहीं है, तो वो जमीन को कम से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दे, ये मेरा सबमिशन है। थैंक यू। सर, इसमें मैं भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। ईटानगर में जैसे कि हमारा जो गंगा बस्ती है, गंगा विलेज जो है, वो जो है हजारों साल से है हम लोग, और उसमें 7 विलेज का नोटिफाइड किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो आज जो है कुछ दिन पहले इसका जो मैप निकल आता है कि गंगा विलेज जो है आकाशदीप, आरके मिशन, ये सब में आ गया, गंगा विलेज में नहीं है। तो अभी जो है कोई भी डेवलपमेंट काम करने जा रहा है तो उसमें एनओसी मांगता है गंगा विलेज को। तो एनओसी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा ना, और गंगा विलेज को या जो आरके मिशन में और जो आकाशदीप में यहाँ बसाएगा। तो इसको मैं भी फॉरेस्ट मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ। मैं Thank you. I'll just मेरा तरफ से एक सुझाव है, ये इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, दोज रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज वी हैव बीन फेसिंग this kind of issues not only in particular place, across the state and maybe in different states also. So I would request honorable members to bring it on a discussion so that we can discuss it in detail instead of putting up in a question answer, because you have very limited time to answer and question, because we have so many questions lined up. तो मंत्री जी इसको आप शॉर्ट में करके I think we can take it up in the next session in detailed discussion how to come out with the solution where that everyone is in a win-win situation, even the forest department and the people. तो ये है। और आपका जो ऑनरेबल एमएलए लिकावाली का वो अभी का फिलहाल के लिए दैट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आई थिंक यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड बाकी जब कंपनसेशन जो आता है नहीं आता यू कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली। तो मंत्री जी आप शॉर्ट रिप्लाई इफ यू वांट टू। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो कंपनसेशन का इशू है, इसमें फॉरेस्ट में भी अपना प्रदेश में इसमें यूएसएफ है, जो ब्लेस रिजर्व फॉरेस्ट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट है। तो जिसमें जहाँ जहाँ में जो अपना नेशनल हाईवे बन रहा है या जहाँ में जो हमारा पावर ग्रिड का लाइन टान रहा है, तो उसमें हमारा डिपार्टमेंट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यूजर एजेंसी के साथ में पहले सर्वे करते हैं कि ये फॉरेस्ट रिजर्व में है कि नहीं, ये जो ब्लेस फॉरेस्ट रिजर्व में है। तो उसको पूरा डेटा को कलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ में जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है या कम्युनिटी लैंड है, इसको यूजर एजेंसी उसका जो कंपनसेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस पे फंड को उसमें डिपॉजिट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जमीन में है, जिस केटी में जो लग रहा है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से उसको पेमेंट करते हैं। जहाँ जहाँ में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो अपना सरकार का जो जमीन है, वो जमीन को यूजर एजेंसी ने भारत सरकार में और उसका जितना जो एनालिसिस करने के बाद में वो अपना डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट में उसको सबमिट कर उसमें फंड को डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद वो पैसा को एनालिसिस करके वो कितने पैसा आया, यूजर एजेंसी ने रास्ता के लिए कितना डिपॉजिट किया। मंत्री जी वो आपका प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन है उसका जवाब है तो दे दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो आपका प्रोसीजर हो गया, कंपनसेशन किस तरह से पेमेंट करता है। तो मेंबर्स का क्वेश्चन कुछ अलग है। अध्यक्ष जी, हम सदन को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इसको फिर वो फंड वहाँ से कहाँ में उसका कंपेंसेट करना, प्लांटेशन करना, उसके लिए वो पैसा को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अध्यक्ष जी माननीय विराट जी ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो पावर ग्रिड में जो काम बंद कर रहा है, उसको पब्लिक को आप कन्विंस कीजिए, उसको जरूर काम करने दीजिए, क्योंकि ये पावर ग्रिड का पूरा देश भर में पूरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अपना प्रदेश सरकार का एक टारगेटेड है सभी गांव में लाइट मिले। हाँ, उसको आप जैसे भी उसको आप पब्लिक को काम करने दीजिए। उसका अगर बाकी समस्या है तो आप जरूर मेरा ऑफिस में आइए, हम उसको बात करके समस्या को समाधान करते हैं। थैंक यू। स्टार्ट क्वेश्चन 16 श्री लंबोताई।
अध्यक्ष जी, आपका माध्यम से सरकार से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्कल ऑफिसर नाम सिंह, उनका चेयरमैनशिप में एक बोर्ड फॉर्म करके स्कूल बिल्डिंग 10 साल आगे जो बनाया था उसका रूफिंग मटेरियल सारा रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उसमें 0.63 गैस की मटेरियल लगाना चाहिए था, लेकिन उसमें 0.20 गैस इतना सब स्टैंडर्ड लगाने से रिमूव करना पड़ा। तो उसको बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके सैंपल भी रखा, कॉपी इज अवेलेबल, बोर्ड प्रोसीडिंग का कॉपी इज अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर नाम सिंह, कॉपी फॉरवर्डेड टू DC पासीघाट, ADC मेबो एंड इन द प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल बरगुली। लेकिन यहाँ लिखा नो रिपोर्ट ऑफ यूजिंग सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन इज, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लेवल में शायद फील्ड ऑफिसर लोगों ने दिए होंगे। देन अगेन सर, whether government is aware of the fact that the CJC roofing of Borguli at Borguli was replaced with a recommendation of board under the chairmanship of circle officer Nam Singh, तो उसमें भी no such report has been received again. Then what action will be initiated either to punish or to recover the full amount from such erring officials does not arise? इसका मतलब इतना बदमाश करने वाला और लापरवाही करने वाला ऑफिसर्स को गवर्नमेंट सील्डिंग कर रहा है क्या? मेरा यही क्वेश्चन है कि इतना लापरवाही, जब इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया होगा एज एन एग्जाम्पलरी मेजर, उनसे रिकवर करना पड़ेगा और लगवाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इतना सफर हो रहा था स्कूल बिल्डिंग में, अल्टीमेटली MLA रेट से उस टीना को भराना पड़ा। सर, इसलिए थ्रू यू मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही है, क्या सरकार एक इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्टिट्यूट करेगा, और अगर गिल्टी उसमें निकल गया या फुल्ली रिकवर करेगा हु वर रेस्पॉन्सिबल? थैंक यू सर। Honourable Speaker, sir, sir, question number 16, the A, B, C, D, E laid in the House, और Honourable member ने जो supplementary पूछा कि इसको इंक्वायरी कमेटी बनेगा कि नहीं बनेगा। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये जो बोरगुली हायर सेकेंडरी स्कूल में जो रामसा के तहत प्रोजेक्ट 2010-11 में प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें उसमें आपकी कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी रूम, साइंस लैब विद इक्विपमेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स रूम्स, 2 नंबर ऑफ एजेंट क्लास रूम्स एंड 1 नंबर ऑफ टीचर्स क्वार्टर्स। और दूसरी जो इफोंग में जो प्राइमरी स्कूल इफोंग मथम में जो है वो 9-10 में सर ये प्रोजेक्ट था, जिसमें आपके 3 क्लासरूम एंड टॉयलेट ब्लॉक था। सर, उस समय में जो प्रावधान था कि जो सरकार की तरफ से जो पैसा धनराशि जाता है DDSC को वहाँ दिया जाता है, DDSC उस रकम धनराशि को जो SMDC स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी को हायर सेकेंडरी को देता था और ये SMC को देता। उनकी तरह ही जितना भी काम हुआ है सर, काम किया गया है। अब जो हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि इसकी जो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, ये है बोल के रिपोर्ट, जब ये क्वेश्चन पूछा तो हमने रिपोर्ट जब मंगाया तो हमारे कोई, क्योंकि रिटर्न कोई यहाँ में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इसके तहत हमने अपनी DDSC को हम कल बात चर्चा की, तो DDSC ने ये जो स्कूल के बारे में मुझे बताया, ये इफोम के बारे में मुझे बताया, ये वहाँ गया है, स्कूल तो है लेकिन उसकी हमने इंक्वायरी कमेटी बैठा दिया है, और वो रिपोर्ट को हम DC को सबमिट करेगा। जैसे उसके रिपोर्ट DC को सबमिट करेगा, DC का रिपोर्ट अगर एक्शन वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में लेते हैं तो ठीक, अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर रिपोर्ट हमने सबमिट करके जो एक्शन लेने देगा हम सर एक्शन लेंगे। श्री तारिन दक्का। Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, my question number is 36.
pertaining to creation of infrastructure in respect of Horticulture Department and the Kamla district. My question is that whether the government have any proposal for construction of infrastructure for Horticulture Department, newly created district, including Kamla district. My point is that आपको अगर ये प्लान आपने तो दिया है, your reply I have seen that as and when finance and investment department provides fund, will construct. But you have posted their officers, but they are having no accommodation. And moreover, I am always telling you that in this August house, in my district, newly created district, there is no rented house. So officers are staying either at Zero or Ritanagar. Then people are crying that where about this head of department? But they do not have accommodation there at Raga. Because of this, acute shortage of accommodation, they had to stay either Itanagar or Zero. And I am facing a lot of problems from the public pressure also. So, Honorable Minister, may concretely give us, or you can keep provision in the next budget session, especially not only Raga, Kamla district, but for the district, newly created district, for head of department, infrastructure, at least office building and DHO's quarter or DBO's quarter or DFDO's quarter. I'll include that. So this is my submission. Thank you very much. Minister. अध्यक्ष महोदय, ये सवाल जो है परसों दिन को भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तहत मैंने ऑनरेबल मेंबर्स को अवगत कराया कि हमारा यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट नया क्रिएट हुआ और सारा लोगों का सारा डिस्ट्रिक्ट जितना नया क्रिएट हुआ सभी का हालत बराबर है। इन्होंने टीकी कहा कि हमने ऑफिसर तो पोस्टिंग कर दिया पर रहने का और ऑफिस नहीं है, क्वार्टर नहीं है, ये सही बात है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग फंड मोबिलाइजेशन का कोशिश तो कर रही है, लेकिन फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी यही एक समस्या था कि पिछले 2 साल जो कोविड का तहत हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सही तरीके से फंड को मोबिलाइज नहीं कर पाया, कारण उसमें अदर्स इमरजेंसी एक्सपेंडिचर होने का नाते वी कुड नॉट प्रोवाइड प्रॉपर डिस्टेंस। उसके बावजूद भी हमको ऑफिसर इसलिए देना पड़ा कि जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ बहुत सारा करस्पॉन्डेंसेस हम लोग करना पड़ता है, चाहे बैठने की जगह हो या नहीं हो। कुछ ऑफिसर्स ऑल द नया डिस्ट्रिक्ट जितना भी हमने आज बनाया ऑल ऑफ देम अंडर पोस्टेड है। जितना स्टाफ देना चाहिए था उतना भी पोस्टिंग नहीं किया, पर किस हिसाब से चलाएगा उसी हिसाब से हम लोग ने ऑफिसर कुछ लोगों को दिया। ये सही बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसमें बनाया नहीं है। इस साल भी हम लोग ने प्रपोजल डाला, पिछले साल भी डाला था, पर मैनेजमेंट में थोड़ा सा देरी पड़ रहा है। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर्स को एश्योर करता हूं कि कोई भी हालत में इसको हम लोग मैनेज करने का कोशिश करेगा और कोशिश जारी है। जब भी हमारा धनराशि का प्रावधान हो जाए तो इसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। Question hour is over. Honorable members, I have received requests from Sri Navam Tuki, Sri Karikokiri, Sri Mopi Mihu, Sri Gabriel T. Wangsu, Sri Kaling Moeng, and Sri Tumke Bagra for leave of absence. I have allowed their leave. Now we'll take up government resolution. The House will take up the government resolution under the provision of Clause 1 of Article 252 of Constitution of India. Sri Alo Libang, Minister of Health and Family Welfare, may move the motion for the leave of the House that the resolution on transplantation of human organ be granted. Thank you, Honorable Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I raise to move for leave of the House that the resolution
in terms of the provision of Clause 1 of Article 250 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh is pleased to adopt the Transplantation of Human Organs Amendment Act 2011, No. 16 of 2011, made in the Transplantation of Human Organs Act 1994, number 42 of 1994, as passed by the Parliament, which received the assent of the President of India on 8 July 1994 and 27 September 2011, respectively, be granted. Thank you. Now, the question is the leave be granted. Those in favor for leave be granted may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it, the leave is granted. Any member willing to participate in the discussion may do so. There's no one taking part, so now Sri Alulivang, Minister of Health and Family Welfare, may reply if they have anything to say. Thank you, sir. Just for the information of House, I have a brief note of this resolution. Adoption of Transplantation of Human Organ Act 1994, Amendment Act 2011 is important to regulate removal, storage, and transplantation of human organs for therapeutic purposes, and for the prevention of commercial dealing in human organs. Adoption of this act will be our first step towards creating suitable infrastructures for implementation, capacity building of hospital staffs and doctors, advocacy for promoting diseases, organs, and tissues, donations, conduct, IEC for bringing awareness among general publics, and establishing national networkings and registry. Presently, there are more than 21 states and UT in India where establishment of regional and state organs and tissues transplant organizations have been initiated after adoption of the Transplant of Human Organs Act 1994, Amendment Act 2011 in their respective states. The following states who have adopted transplantation of human organs are Assam, Maharashtra, Chandigarh, Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Goa, Haryana, Odisha, Jharkhand, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli will be the next. Therefore, in the exercise of the power conferred by Clause 1 of the Article 252 of the Constitution of India, this House may resolve to adopt this Transplantation of Human Organs Act 1994, Amendment Act 2011 in the state of Arunachal Pradesh. Thank you, sir. Now, Sri Alulivang, Minister of Health and Family Welfare, may move for adoption of the resolution. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the resolution be passed, adopted. Now I'll put the resolution to vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it. The resolution is adopted. Now we'll take up zero-hour discussion. Sri Ninongiring may raise the matter regarding construction of new railway line at 12th Mile, Rami, Sile and other adjoining areas relating to Transport Department. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो हमारा केंद्र सरकार को और हमारा अपना राज्य सरकार को मैं धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारे जो पासीघाट का एक बोन ऑफ कंटेंशन थी, बहुत समस्या था, वो अभी हल हुआ, समाधान हुआ है। और जितने भी वहाँ के हमारे जो गांव वाले के वहाँ का उनका आपूर्ति हुआ है, नुकसान भरपाई भी पूरा हो चुका है और
काम ये भी शुरू होने वाला है। लेकिन वहाँ जब हम रेलवे लाइन मुरकोंग सेलेक से पासीघाट का जब अब काम शुरू करेंगे, तो पासीघाट जो है ईस्ट सियांग और खासतौर मेरे क्षेत्र और जिन बस्तियों का आपने नाम लिया, 12 माइल, मांगनांग, सिले, ओयान, रानी, ये सब हमारा सर राइस बोल है। अरुणाचल का, सिर्फ ईस्ट सियांग में अरुणाचल का भी यहाँ बहुत उत्पादन होता है धान का, और बहुत उसका हार्वेस्ट अच्छा होता है। लेकिन जो अभी जो रेलवे लाइन जाएगी, उसमें अगर कुछ प्रावधान ठीक से नहीं लेंगे भविष्य के लिए, तो शायद ये जो जमीन है रेलवे लाइन के नीचे वो बंजर हो जाएगी और एक रेगिस्तान जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वहां अगर पानी नहीं होगा तो एक बार खेतों के बीच से जब जाती है तो वो पूरा जो रेलवे लाइन की जो पटरी होती है वो तो एक ऊंचा स्थल पे होता है, और जो नीचे डाउन जो रेलवे लाइन के नीचे जो है, क्योंकि वो पानी ऊपर से जो इरिगेशन जो होता है, जो हम सिंचाई जो होता है, वो ऊपर से जो आप देखते हैं सर, हमारा यहाँ एक नेचुरल वी टेक इट, जितने भी हम लोग पेरिनियल वाटर से लेते हैं, नदी से लेते हैं, और अगर इन खेतों में, धान खेतों में अगर पानी नहीं होगा तब तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा और या नहीं के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ के जितने भी गांव वाले हैं, चाहे वो 12 माइल गांव, मांगनांग का, सिलेक और यहाँ वो ज़्यादा उन्हीं को अफेक्टेड हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ प्रावधान बनाना है, जैसे कि हमारे जो ओवर ब्रिजेस होना होगा, फिर उसका रेलवे जो क्रॉसिंग्स जो है अनमैन्ड क्रॉसिंग है, उसमें हम लोगों को वहाँ रखना पड़ेगा। जितने भी ये छोटे छोटे नाले हैं उसके लिए प्रोविजन रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रख सकता तो एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए कि इन नदियों को किस प्रकार से इसको हम लोग टेम कर सकेंगे। अभी आप हाल ही में आप देखते हैं जिस प्रकार से जो वर्षा ऋतु का वो जो यू कैन से दिस हमारे जो इकोलॉजी को इफेक्ट हुआ है, पर्यावरण को इफेक्ट हो रहा है, तो इतना सारा बारिश होता है, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरा भारत वर्ष में पूरा हो रहा है, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हमारा राजस्थान जैसे रेगिस्तान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो अभी वो चेंज होगा, ग्लोबल चेंज हो गया, ग्लोबल जो हमारा वार्मिंग जो है उसके कारण से यहाँ पर्यावरण को भी बहुत असर हुआ है। तो अगर हम वहाँ चैनलाइज नहीं करेंगे नदियों को, अरुणाचल प्रदेश का नदी जो है इतना वो वर्षा ऋतु के समय इतना ज़्यादा वर्षा होता है कि वो जो रेलवे का पटरी सब वो टूट जाएगी। तो उसका प्लानिंग का मुताबिक हमारे जो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं, हमारा यातायात मंत्री भी है, हमारा आदरणीय चीफ मुख्यमंत्री हो या हमारा छोटे भाई नाकम नालो जी हो, वो इसका एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एक प्रावधान बनाना पड़ेगा हमारा रेलवे अथॉरिटीज को। काम शुरू होने के पहले किस प्रकार इन छोटे छोटे नालों को कैसा हम लोग उसको चैनलाइज करेंगे, या एक मेन चैनल से अगर जाएंगे तो PMKSY के थ्रू के नेतृत्व से या कुछ और प्रोविजंस लेके इनको कैसा हम लोग इसको सिंचाई का हम काम करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको एक सिस्टमिक वे में नहीं लेगा तो रेलवे लाइन भी पूरा वो जो फ्लड होगा उस समय में पूरा वॉश आउट हो जाएगा, और जो हमारे नीचे का जो खेती है सब में वो इफेक्ट। तो मेरा यही है, एक गुंजाइश है सबको, हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव अरुणाचल सरकार का, ताकि हमारा पब्लिक को उसका जो किसानों को उनका जो अभी का जो उत्पादन है उसमें इफेक्ट ना हो, हम वही चाहेंगे। क्योंकि वो जो बेल्ट है सर, ऐसे भी तो पोबा रिजर्व में है, इट इज स्टिल अंडर पोबा रिजर्व, लेकिन इसमें वन मंत्री का भी फिर बात आ जाता है कि अभी तक इन इलाकों में जो लैंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होता है। तो कॉम्पेंसेशन तो मिला, ये अच्छी बात है, लेकिन ये प्रावधान भी होना चाहिए अभी लोगों को कि इनका जो लैंड है वो भी
रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो छोटे छोटे नाले जो होते हैं उसके लिए आप किस प्रकार से आप एक एग्रीमेंट करेंगे थ्रू विद द जो हमारा रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ। अगर इसको हम नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी से शुरुआत होने वाला है, और आप शुरू होने के बाद आप डिमांड करेंगे फिर भी, और रेलवे अथॉरिटी वो नहीं मानेगी, ये तो केंद्र सरकार का है, वो तो अपना जो मनमानी वाला बात नहीं, लेकिन वो जिस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग लिया है वो उसका मुताबिक हो। तो हम लोग को चाहिए सर, बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारे अनमैन क्रॉसिंग्स हैं, बहुत सारे हमारे वो नालेज हैं, छोटे छोटे नाले हैं, नदियां हैं, इसको किस प्रकार से हम लोग इसको रिवर्स को टेम करके इसको थ्रू दिस चैनल्स हम लोग लाएंगे, वो हम अपना रेलवे अथॉरिटीज़ का साथ हम लोग को उनका जवाब भी हमको मांगना है, और हमारा जो यहाँ आदरणीय मंत्री हैं उनसे भी एक एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि जब आप काम शुरू करेंगे तो रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ और हमारा वहाँ का जो किसान है, किसान भाइयों के साथ किस प्रकार से इसको काम को हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि इसको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रेलवे का काम है वो शुरू हो गया। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री। Honorable Speaker sir, जो हमारे सीनियर ऑनरेबल मेंबर नैनो इरिंग जी ने जो डिस्कशन में लाया है, रेलवे लाइन 12 माइल रीमी सिले एंड अदर ज्वाइनिंग एरियाज, आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी ये टॉपिक ऐसे जो डिस्कशन हाउस में लाने से सरकार के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ होता है कि सरकार काम करते जाता है, ना पब्लिक को पता होता है या किसी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट का है उसको पता होता है। तो हम लोग काम करते जाता है डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्टेट के लिए। तो हमारे ये जो है नॉलेज जो है, हमारे काम करने का जो रिजल्ट जो है बाहर नहीं आ पाता है। तो एक बड़ा भाई को सर आपका माध्यम से मेरा अपना तरफ से थैंक यू सो मच। तो जब से इस डिपार्टमेंट को संभाला है, कुछ ऐसे टॉपिक्स बार बार आते रहता था अभी लगभग वो पूरा खत्म हो गया। एक मेरा सिमिलर क्वेश्चन आता था 3 साल में एक TCL का जो टूरिस्ट सर्किट का, वो आते आते अभी लास्ट जो सर्किट मिल गया है, तो और लास्ट में माने वो जाते जाते एक अनस्तर क्वेश्चन बन के चला गया। तो अच्छा लगा है, तो हमने काम किया उनके महसूस कर रहा है विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमेशा गाइडेंस देता है कि ये होना है वो होना है। तो मार्कों से ले तो पासीघाट रेलवे भी ऐसे है कि मेरे लिए जो हमेशा रूटीन एक मेथड हो गया। तो इसी लाइन को क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एज ए नॉट एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रादर एज ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लैंड मैनेजमेंट, तो उसी को लैंड मैनेजमेंट के हिसाब से देखते रह गया, उन लोग काम करते गया, क्योंकि उसका पूरा जो सॉल्यूशन जो है जितना प्रॉब्लम था खत्म हो गया। डेट ऑल्सो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू जी का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे सीनियर बहुत से ऐसे ये है, नैनो बराबर साहब कुकुट भी है और भी नेता वहाँ का लोकली लोग है, उसका कोऑर्डिनेशन से और दोनों चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सुपरविजन से ये सॉल्यूशन आया, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी टॉपिक बन के रह गया था। तो कभी कभी खुशी होता है कि ऐसे चीज़ में हमको थोड़ा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है कि तो हमको भी महसूस होता है कि हम भी थोड़ा अपना भाई बहन के लिए और माँ पिता के जी के लिए अरुणाचल के लिए कुछ काम करने को मौका मिलता है। तो आज का जो डिस्कशन जो है ज़्यादा लंबा ये करने के लिए डिस्कशन के लिए तो नहीं है, मेरा रिप्लाई में भी इतना मैं लंबा भी नहीं खींचूंगा, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेमा खांडू जी के नेतृत्व का सरकार जो है, हम लोग प्रो पीपल वेलफेयर सरकार है, इसलिए जब भी एनी प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में तरह इशूज हम लोग जब इनिशिएट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सबसे पहले सरकार का एक नीति होता है कि
कहीं प्रोजेक्ट बनते समय बेनिफिट का जगह में हमको लॉस ना हो, मेरा पब्लिक को किसी को तकलीफ ना हो, ये सबसे गवर्नमेंट का एक तो प्रायोरिटी होता है। तो उसको देखते हुए ये रेलवे जो लाइन बिछा रहा है मरकों से लेकर पासीघाट, उसको भी हम लोग 24/7 हम लोग ऐसे देखते रहते हैं कि कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पिछले कुछ समय से उसी लाइन पे काम कर रहा है। इसलिए ये जो लाइन का जितना लैंड का प्रॉब्लम था, कॉम्पेंसेशन का प्रॉब्लम था, लगभग खत्म हो गया। और कुछ थोड़ा कुछ चौथा मता रह गया हो, एक लोकल प्रॉब्लम है ना, स्टेट का है ना, ये क्या बोलता है आपका रेलवे का है, अथॉरिटी का कोई ये नहीं है। तो वहाँ का पब्लिक का कोऑपरेशन का कारण से, तो इसलिए सर आपका माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहता है कि आपका जो एप्रीहेंशन है, जो पब्लिक का एक डर है, तो कहीं ऐसा ना हो, उसको डेट मेथड हैज बीन ऑलरेडी टेकन अप विद द रेलवे अथॉरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट उसका डिस्कशन हो चुका है और उसका एश्योरेंस भी आया है। तो कुछ ऐसे चीज़ है कि रेलवे अथॉरिटी से ऐसे माने ये क्या होता है, कहीं रेलवे लाइन जाने के बाद हमारा WRC जो फील प्रॉब्लम ना हो, इफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो, क्योंकि उससे बहुत ऐसा लाइफ माने डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का लाइफ को डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए उसको रेलवे का साथ जो है डिटेल डिस्कशन में पहले से किया गया, अभी भी टच में है और कॉरेस्पॉन्डेंट भी ऑलरेडी वहाँ से मिल चुका है। तो रेलवे अथॉरिटी को ये इसी बारे में पूरा डिटेल ये करने के बाद रेलवे अथॉरिटी से वहाँ से कन्वे किया है कि एश्योरेंस आ गया कि लेटर आ गया कि ये जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे है कि जस्ट हम लोग फैसिलिटी एक डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं है। क्योंकि उसी लाइन को ज़्यादातर हम लैंड वाला देखते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, तो कॉम्पेंसेशन पे को भी लैंड में आ जाता है। तो इसलिए लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या रेलवे का कोई डिपार्टमेंट नहीं होने के कारण ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कमिटी के लिए आ जाता है। तो वहाँ से जो रेलवे अथॉरिटी जो DC को कॉरेस्पॉन्डेंट किया है, हमको अथॉरिटी को कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। सर आपका माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूँ कि आपका DC के पास भी होगा ये लेटर जो है, और हमसे भी आप सेशन खत्म करके ले सकता है। तो ये रेलवे अथॉरिटी का लैंग्वेज है। The official of North East Frontier Railways are going to provide sufficient provision for agricultural irrigation for free flow of water by constructing bridges for major minor water outlets and cross pipe systems for small water outlets from water resource. The existing WRC field will not be hampered for the want of water connectivity for irrigation purpose in the process of railway construction. ये उसका ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट है। और जहाँ तक एक जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड जो है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड जो है हम अपना डिपार्टमेंट के साथ विचार विमर्श करने के बाद और कॉरेस्पॉन्डेंट जो है हमारा रेलवे अथॉरिटी से भी ये करेंगे। उसके बाद बाकी क्या रिजल्ट होता है कि किस ढंग से उसका रजिस्ट्रेशन करने का ये है, तो उसको हमारे अंदर में आता है ना, और करने का कैसे होता है उसको थोड़ा गाइडलाइन पे जाके हम अपना डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करने के बाद आपको कन्वे कर लेंगे। तो सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं अपना माता पिता भाई बहनें जो 12 माइल रेमी सीले और अदर जो एरिया जहाँ से रेलवे जो ट्रैक क्रॉस करता है कि उसी का दर से मैंने उसको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई चिंता नहीं, आपके लिए सरकार काम कर रहा है और आपके लिए हम यहाँ बैठा हुआ है, आपका कोई ये नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा आपका जितना जो दर था, आपका जितना सोचा था, उससे पहले सरकार जो अपना स्टेप उठा चुका है और कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, और कुछ और करने का लायक है भी हो तो करते जाएंगे, उस पर कोई डरने का ये नहीं है। हमारा सरकार का जो करने का वेलफेयर सरकार है और पब्लिक का वेलफेयर के लिए हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर, एक अनाउंसमेंट है। हमारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को आज सोलूंग फेस्टिवल के लिए डिनर पे बुलाया है। ये 7 बजे स्टेट गेस्ट हाउस, तो उनका रिक्वेस्ट है कि कोई विदाउट फेल सब अटेंड करना है। तो नेक्स्ट वी विल टेक अप द बिल, तो उसको अभी माननीय मंत्री जी अभी
बाहर हमें बुलाने भेजा, तब तक आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए यहीं पे इनसाइड द हाउस. Break inside the house. चाय पिलाओ. डिस्कशन वो मालिक गायब है. Resources, agriculture and horticulture.